So what we are going to do in this our today's lecture is going to be, we are going to talk about GANs, generative adversarial networks. So if you are having any doubt in between, then you can ask. And I am assuming that all of you are well aware of what we have covered in VAE and so far. And usually what happens that everybody understand that what I'm going to cover is going to be a completely new topic. No, it's not a completely new topic. In fact, I have covered VAE just to somehow give you the introduction of GANs. So let's start about VAE, backpropagation using reparameterization X. This is actually a parameters phi. This is parameterization for theta. We have got an X and a Z. So X is being converted into Z's. Z's are being converted into X. And these are the two mapping functions basically being estimated using two networks. First one is the encoder, another one is the decoder. This is the distribution of Z's that this network is actually telling us. If you give me some X which is coming from my data set, I am going to convert it into some Z which is going to roughly follow this distribution. And from that distribution, I sample something, show it to my network, and that will tell you that if you give me something which is being sampled from this distribution, I'll try to convert it into a new image in such a way so that it looks very similar to the images that I have in my data set. And second thing is the distribution that from which I am sampling. This network is saying that make it as close as possible to unit normal. That's the essence of VA. And why it's being done in that way, we have seen. And what are the pros and cons of such a network? In fact, not many cons we have seen, but what are the pros of such a network? This is what we understand, that if you wanted to generate new things, this is the only way, or the one way by which you can generate. Today we are going to see the new or the next way by which we can generate the thing. This is the elbow loss, which is having two losses. Reconstruction loss, which is essentially being maximized, and the KL divergence that should have to be minimized. And this is being devised in a way so that it becomes X minus this. That's the MSE or the L2 loss. Till this point, if there is anyone who is having any doubt, please ask. And no doubt, so we're directly going towards the problem. Pehli problem kya hai? Our first problem is going to be, this is the L2 loss, MSE loss. This is actually a big problem. ये क्यों है problem? इस problem का क्या मतलब है? Let us see. Okay. Let us see. The problem is, I have an image. We all know. Yes. Yes. Sir, I have a doubt with reparameterization technique. हाँ, बोलिए. तो मुझे वो समझ नहीं आया कि जैसे कहते हैं कि reparameterize इसलिए किया जाता है ताकि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो जाए और बैक प्रोपगेशन कर पाए. कंटिन्यूअस नहीं, डिटरमिनिस्टिक हो जाए. कंटिन्यूअस से लेना देना नहीं है, डिटरमिनिस्टिक हो जाए. बट अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो वो बैक प्रोपगेट कैसे होगा? मतलब बैक प्रोपगेशन तो सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शंस पे होता है कि हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं. तो हमारे सारे लॉस फंक्शन तो कंटिन्यूअस होते हैं, डिसकंटिन्यूअस तो है ही नहीं ना कोई भी चीज. यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस कौन सा फंक्शन है? सर हम जब Z से सैंपल कर रहे हैं तो काइंड ऑफ वो और फिर उसको कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि हम मतलब एक एक सैंपल करके निकाल रहे हैं तो वो डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ. नहीं भाई, जिससे आप सैंपल कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है ना भाई. आपके सामने वो फॉर्मूला लिखा हुआ है कि आप Z म्यू और Z सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे सैंपल करेंगे.
एक फंक्शन है। क्या है वो फंक्शन? कि पहले यूनिट नॉर्मल से सैंपल करो, उसमें z सिग्मा मल्टीप्लाई कर दो और z म्यू ऐड कर दो। ये कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ ना। द ओनली थिंग इज दैट इट्स नॉन डिटरमिनिस्टिक फंक्शन। एंड सर वन मोर थिंग, जब हम ये हाँ बोलिए। कहते हैं कि हमने एनकोडर को x दिया और वो हम्म। हमें z म्यू और z सिग्मा देता है, तो वो कौन से हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन से हमें कैलकुलेट करके बताता है? मतलब वो z म्यू z सिग्मा एक्चुअली होते क्या है, जो दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं? वो दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उससे कहते हैं 128 डायमेंशनल की दो वैल्यू बताओ मुझे। उसको पता नहीं कि ये दो वैल्यू क्या है। उसको ये पता कैसे चलता है कि ये जो दो वैल्यू हैं ये z म्यू है और z सिग्मा है? बताइए। तो मुझे यही समझ नहीं आया कि मुझे लग रहा था कि अगर हम उसको x दे रहे हैं तो वो हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स दे रहे हैं, म्यू और सिग्मा, और वो म्यू वो और हमें सिग्मा ये दे रहा है। हाँ, सिग्मा हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स है। हाँ। तो हर बार हमें एक्स मिलेगा तो हमें क्या नए नए डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे या पुराने से रिलेट करते हुए मिलेगा? हर बार मुझे जो एक बैच आप बनाएंगे, उस बैच से जो z बन रहे होंगे, उन z के जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनके पैरामीटर्स को बताना एनकोडर का काम है। ठीक है। ठीक है। यस लेकिन सर। इसमें एक क्वेश्चन और उठा, जो अभी आपने पूछा उसी क्वेश्चन के बारे में मैं फिर से कहता हूं कि मुझे ये बताइए कि एक एक्स अंदर डालता हूँ एक नेटवर्क से और कहता हूँ दो वैल्यू बताओ। वो जो दो वैल्यू बता दे, उसको कैसे पता चल रहा है कि मुझे जो दो वैल्यू बतानी है उसमें से पहली वाली वैल्यू म्यू होनी चाहिए और दूसरी वैल्यू सिग्मा होनी चाहिए? फिर तो उसे हमने पता उसको कैसे चला? वैसे ही बताया होता है कि ये मतलब हम उस उन डिस्ट्रीब्यूशन को पैरामीटराइज वैसे करते हैं न्यूरल नेटवर्क के साथ कि वो हमें मीन और डेविएशन कैलकुलेट करके दें। हाँ। यही आंसर है सर। लीव कर। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, कुछ इशू हो गया था। मैं पहले ये करता हूँ कि ये, तब तक मेरा क्वेश्चन चल रहा था। एक अनुष्का ने कुछ तो जवाब दिया था कि हम उसे वैसे ही करते हैं, क्या मीनिंग है? एक मिनट रुकिए, मैं किसी और से भी जरा पूछ लेता हूँ। ये तो है ही है। अम, रोहित भामू, आपको सुनाई दे रहा है? यस सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक नेटवर्क है, ठीक है उस सर। नेटवर्क को मैं एक्स देता हूँ, एक्स देने के बाद कहता हूँ कि मुझे म्यू और सिग्मा बताओ। अब हाँ वो ये सर। बात कैसे जाने कि मुझसे म्यू सिग्मा पूछा जा रहा है? सर आई गेस जब हम उसको इनकोडर में जब भेजते हैं हम्म। तो हम मतलब उसको उस फंक्शन को मतलब इसी तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो उसका मीन दे दे और जो उसका डेविएशन है वो दे दे। नहीं, एनकोडर में तो एक्स ही भेजता हूँ, कुछ भी नहीं करता, और सिंपल सा एनकोडर होता है, जैसा कोई भी रेसनेट भी एक एनकोडर है, गूगल नेट भी एनकोडर है, ऐसे कोई भी नेटवर्क, एलेक्स नेट, वीजीजी, ये सब एनकोडर है। कोई भी एनकोडर ले सकता हूँ जो मुझे एनकोडिंग देता हो।
और उसको मैं x देता हूँ, और इंस्टेड ऑफ आखिरी लेयर पे एक चीज बनाने के मैं दो चीज बनवा लेता हूँ उससे, एक z म्यू बनाओ, एक z सिग्मा बनाओ। और आप एक चीज देख रहे होंगे खास कि मेरे पास z म्यू z सिग्मा का कोई भी ऐसा ग्राउंड ट्रुथ अवेलेबल नहीं है जिससे कि मैं लॉस निकाल के बैक प्रोपेगेट कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन समझ गए मेरा पहले? हाँ सर। क्वेश्चन क्योंकि समझना जरूरी है पहले, क्योंकि अनुष्का ने भी जो सवाल पूछा इसका उन्होंने कुछ कुछ जवाब भी दिया, मैं थोड़ा और डिटेल कर रहा हूँ उसको। भाई नेटवर्क को कुछ भी दिखा के कुछ भी पूछ लोगे क्या? भगवान तो नहीं है ना, वो कुछ तो भी नहीं बना देगा ना। हाँ सर। अच्छा और लोगों से पूछते हैं जरा। स्वप्निल तुम बताओ, स्वप्निल। सर मतलब मैथमेटिक करने के लिए। आपकी आवाज कट रही थी, एक लाइन में बोलिए तुरंत। सर जैसे हमने वी में लिखा था, ये भी यही चल रहा है अभी। हमें ऐसा प्रोबेबिलिटी जैसे वो पिक्स सर मतलब ज्ञान स्टार्ट अभी ज्ञान स्टार्ट हुआ नहीं है ना, अभी मत करना। तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है, रुक जाओ मैं किसी और सर से पूछता हूँ। मतलब वो हम नेटवर्क प्रॉब्लम है। ऋचा ठाकुर आप बताइए। Yes sir, मैं actually सोच रही थी but I think I don't have an answer sir अभी right now. कोई बात नहीं, हिमानी है, क्योंकि हिमानी सर आप बताइए। कोई बात नहीं, नो बट डोंट वरी। हिमानी आप बताइए। हिमानी है? यस सर हाँ हूँ। बोलिए। सर एक्चुअली जेड हमें जो मिल रहे हैं वो तो डिस्ट्रीब्यूशंस ही मिल रहे हैं जो डेटा सेट पे हर एक एक्स के लिए। हर एक एक्स के लिए नहीं है, एक बैच में जितने भी एक्स आप दिखाएंगे हाँ यस सर। उन सारे एक्सेस से वो क्या करता है, देखते देखते उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट निकालने की कोशिश करता है। यस सर। तो उसको पता कैसे चलता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन निकालो? चलिए कोई बात नहीं, हम लोग जाते हैं हार्दिक के ऊपर। हार्दिक अग्रवाल आप बताइए। सर शायद से जैसे हमने उसे एक एक्स का वो डिस्ट्रीब्यूशन दिया पूरा, तो अब उसे हाँ। हम मतलब शायद से एनकोड करना या मतलब प्रोग्राम करना पड़ता है कि वो जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करके दे हमें। ऋतिक सॉरी क्या नाम था, मैं भूल गया। रितेश, अरे आप अपना नाम बोलिए। अरे मैं भूल गया किससे बात कर रहा था। हार्दिक, हार्दिक सॉरी। यस सर। यस हार्दिक। हाँ यस नहीं सर। नहीं, और मैं एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देता हूँ। क्या देता हूँ बताओ? मैं वी मतलब को क्या देता हूँ? हमने एक z दिया उसे, तो वो हमें उसके डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं पैरामीटर्स कैलकुलेट करके देगा। नहीं नहीं, जेड नहीं दिया। मेरे एनकोडर को वीएई में क्या देते हो? एक एनकोडर को वीएई में क्या देते हो? हम x देते हैं शायद सर। एक्स देते हैं। तो जब हाँ। एक्स देते हो तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं बताते हो उसको? हाँ मतलब X, जैसे कि हाँ बोलिए सर। एक्स और एक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस है ना। हाँ हाँ हाँ। एक्स तो एक मान लो 100/100 की इमेज है, हाँ और उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो म्यू और सिग्मा, अगर आपने माना है तो म्यू और सिग्मा फॉलो कर रहा होगा। हाँ। अब बताओ मुझे कि क्या देते हो? क्या एक्स देते हो ना? हाँ तो जब एक्स देते हो और बाहर जेड भी अब नहीं निकलवा रहे, डिस्ट्रीब्यूशन निकलवा रहे हो, यस सर। तो कैसे वो ये बात समझ रहा है? ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, कहीं नहीं लिखी मिलेगी आपको। ये बहुत ही अंदरूनी बात अभी अनुष्का ने पूछ दी है, और देखिए पूरी क्लास जो है धीरे धीरे करके धराशायी हो रही है। हैवी ड्यूटी सवालों की जवाब पता है आपको? हाँ बोलिए। सर आप सर जब हम डिकोडर मतलब जब हम एक्स डालते हैं और अब हम जेड म्यू और जेड सिग्मा निकाल लेते हैं तो हम उसको डिकोडर में डालने से पहले सैंपल करते हैं। तो बहुत सर ये जो बढ़िया। सैंपल का प्रोसेस है इसी से उसको पता चल रहा है कि मुझे म्यू और सिग्मा
निकाल रहे हैं हम, तो यही है सर। अमी सर अरे आशिमा। आशिमा बोल रही ना, मैं समझ गया। सुनिए, ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने। देखो, बात समझने की आप कोशिश करें कि कुछ चीजें इम्प्लिसिटली मेरे नेटवर्क के अंदर डिसाइड होती हैं। अगर मैंने बोला कि मैंने तो आशिमा से पूछा भी नहीं उसका नाम, वो अपने आप समझ गई कि देखो नाम पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने 2 बार गलत नाम बोला और ये अपने आप समझे। वैसे ही मैंने नेटवर्क को बोला एक्स दिया, उसने कुछ तो जेड म्यू जेड सिग्मा बेकार से, बिल्कुल बेकार भी क्या, कुछ जैसे ऐसे निकाला जो उसे कुछ पता ही ना हो, रैंडम। ओके, उस रैंडम सैंपल से जब मैंने जा करके रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल करके नेटवर्क को दिखाया, वो तो कुछ कर ही नहीं पाया। जब कर नहीं पाया तो बैक प्रोपेगेट होना जब उधर से स्टार्ट हुआ, तो डिकोडर में बैक प्रोपेगेट होने के बाद वो एनकोडर में रीपैरामीटराइजेशन लेयर्स में आपने देखा जहां पे वो बैक प्रोपेगेट हुआ, तो उसने कहा अरे ये कैसा म्यू और सिग्मा देते हो भाई, बिल्कुल बेकार है म्यू सिग्मा। ऐसी म्यू सिग्मा से अगर मैं एनकोडर को जेड दूंगा तो वो तो कुछ बना ही नहीं पाता है, बिल्कुल बकवास है ये, सही करो जरा। तो उसने अपने जेड म्यू और जेड सिग्मा को धीरे से बदला। कैसे? जो भी ऊपर से डेरिवेटिव आ रहा था, उस डेरिवेटिव का डिफरेंशियल किससे निकालोगे? विद रिस्पेक्ट टू ऑल द म्यू एंड सिग्मा के जो भी पैरामीटर है। अगर म्यू 10 डायमेंशनल था तो 10 डायमेंशन में डिफरेंशिएट होगा। इस तरह से उसे पता चलेगा कि अरे ये मुझसे जेड नहीं मांगता है, ये मुझसे कुछ ऐसी चीज मांगता है जहां से सैंपल करता है तब इसको जेड मिलता है। इसलिए, और वो चीज कहां से आ रही है? वो रीपैरामीटराइजेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गई है। ये अगर बात सभी कोई समझ गए हो तो अपनी चैट में लिखें यस। आई वांट टू सी टू मेनी यस। यस या वाई भी लिख दो, वाई भी ओके है, जस्ट लिखिए वाई। 4 5 6 7 8 9 10 37 कनेक्टेड है। एक मैं हूँ, एक दक्ष है, 35 लोग हैं। अभी मैं देख रहा हूँ किसने नहीं किया, फालतू में ना करे, समझ में आ रही है तो ही करें। अभी भी 25 24 हुआ है। वो कौन बंदा है जिसको समझ नहीं आया? अगर आप पिछली क्लास में नहीं आए थे तो अलग बात है। इन नम्रता मलखानी है, नम्रता मलखानी, नम्रता नहीं है। इन्होंने बताया था कि इनकी खत्म होने वाली है, उसके बाद आएंगे। चलो, काफी लोगों ने बोल दिया। अच्छी बात है। अच्छा, स्टिल हैव डाउट, लेकिन ये मुझे लग रहा है पुराने जमाने की बात है अनुष्का जो कह रहे हैं, या नहीं? हाँ बोलिए, अभी आपने भेजा है, बोलिए अनुष्का। मे बी लेटर अगर कभी बाद में हाँ डिस्कस ठीक है, करें, पर अच्छी बात है। एक काम करेंगे कि आप मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं आपको फोन पे बता दूंगा। ठीक है सर। ओके, चलिए क्लोज आते हैं इधर। ओके, ज्ञान लेक्चर। तो भाई ये वाली सब बात हम लोग समझ गए। अब एक नई चीज पे आओ जरा, तो मैं आपको सर, एक इमेज दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन है, सॉरी पूछो। सर, नहीं पूछो, क्वेश्चन नहीं पूछो। सर, मतलब हाँ, मेरा पॉइंट ये था सर कि नॉट ओनली हम estimate करते हैं so that we are able to reconstruct, but also my understanding is we would like to convert this distribution to approach a normal distribution as well, हाँ, right? करेक्ट। तो ये भी सर, ये भी important point है, so that once and decoder works independently of encoder, तो हम किसी भी normal distribution से sample लेके हाँ, we can decode और we can generate a new image, हाँ, right sir? करेक्ट करेक्ट। दोनों बातें हैं, मैंने आधी से बताई। मतलब आप यूनिट नॉर्मल के पास लेके जाओ, किसी और के भी पास लेके जाओ, बट बेसिकली मुझे क्या चाहिए वो इस पर डिपेंड करता है कि जो मैंने मांगा तुमसे उसको मैंने यूज कैसे किया। Right sir, समझे? that is, yeah, that's दैट इज द मेन एसेंस। अब उसको मैंने जैसे यूज किया उसी प्रकार का तुम्हें अगली बार देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, right. अच्छी बात है। आते हैं अगले पॉइंट पर। इन इमेजेस को देख के आपको क्या लगता है कि ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की इमेज है, बहुत जबरदस्त आदमी थे। अब इसमें आप देखें कि ये ओरिजिनल इमेज है ए, अच्छी बात है। इसमें थोड़ा सा किसी ने नॉइज डाल के ये बना दिया, फिर थोड़ा सा डाला ये बना दिया, फिर थोड़ा डाला ये बना दिया, फिर ये बना दिया, फिर ये बना दिया। जानते इसमें एक खास बात क्या है कि अगर मैं इन सारी इमेजेस का, बिलीव मी, 1
लेट मी राइट 1 1 2 3 4 और 5, इन सारी इमेजेस का इस ए इमेज से डिस्टेंस निकालूं, कौन सा डिस्टेंस, MSE L2 डिस्टेंस निकालूं, जानते क्या आएगा, कोई बताएगा? ये अगर मान लो यहाँ पर 10 आया तो ये 15 हो सकता है, ये 20 हो सकता है, ये 25 हो सकता है और ये 30 हो सकता है। क्या आप सभी लोग इस बात पे एग्रीड हैं, या कोई ना एग्री हो तो बोले? सर नहीं, जरूरी नहीं है कि ज्यादा डिस्टॉर्टेड इमेज ज्यादा दूर हो। सही कहा आपने। एक्चुअली चक्कर ये है कि ये इस तरह से डिस्टॉर्ट किए गए हैं कि इन सब का MSE ए के साथ सेम है, समझे? नीचे आते, इमेज ए इज ओरिजिनल एंड ऑल द रिमेनिंग इमेजेस आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम दिस इमेज, और सबका ऐसे ट्रांसफॉर्म किया है कि MSE सबका सेम है। अब आप बोलेंगे इसका MSE सेम है, हाँ, अगर आप MSE निकालेंगे तो वो सेम है। दिखने में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ चुका है, एंड यू कैन एक्चुअली डू थिंग्स इन दैट वे। लेट अस सी प्रॉब्लम। आप पहले तो इस प्रॉब्लम को समझे कि सेम MSE के साथ आपको ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। पहली बात, ये MSE का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि MSE जो है इट्स नॉट अ वेरी गुड मेजर इफ यू आर रिकंस्ट्रक्टिंग। लेकिन सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। L इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, बहुत ही, है ना, प्रूफ कर रहे हैं लोगों ने, इस तरह से प्रूफ नहीं किया, लोग सिंपल सी बात देखते हैं कि ये प्रिडिक्टेड है और ये जो एक्चुअल था, तो एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के बीच में माइनस करके स्क्वायर करके फिर I और J जो मेरे सारे M क्रॉस N इमेज के लिए, तो ये पूरा MSE बन गया और इसको नॉर्मलाइज कर दिया, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये मेरा MSE लॉस फंक्शन है। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो MSE लॉस फंक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो यू ऑल एग्री, बिकॉज ये तो यही चीज लिखी हुई है। ओके अब जरा दूसरे डायरेक्शन में जाता हूं, ठीक है। ऊपर वाली बात दिखा दी, ये सामने लिखा है MSE जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए जरा एक बात पे आते हैं, ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन मुझसे कहता है कि मुझे म्यू और सिग्मा, इफ यू गिव मी दैट व्हाट इज माय म्यू एंड सिग्मा, I can tell you that given this mu and sigma, with what probability x belongs to this distribution or not. ये वाली बात बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं ही होती है। जैसे ये बात पूछ लेते हैं Redmi 7A से। Redmi 7A आपका क्या नाम है? Redmi 7A, आपके नाम में Redmi 7A लिख के आ रहा है, क्या आप अपना नाम बताएंगे? नहीं सुनाई दे रहा है सर, चैट में है, उन्होंने टाइप भी किया है, लेकिन Redmi 7A बता नहीं रहे हैं अपना नाम। सर अपने उसके नाम से माइक जुड़ा में कुछ करिए। प्रॉब्लम है। आकाश नाम है। अच्छा, आकाश आप बता सकते हैं, आपका इंटरनेट कमजोर है, आप बात नहीं कर सकते, आप चैट में लिख दे। ओके सर, कोई बात नहीं। सर लिखा है उन्होंने चैट में। अच्छा, चैट में कुछ लिखा है। आकाश, माई माइक है सम इशू, कोई बात नहीं, सॉरी, थैंक यू। हम लोग जाते हैं ये बात पूछने। अभी कौन बोल रहा था जो अभी प्रतीक थे? प्रतीक? हाँ सर। प्रतीक यार देखते रहा करो बीच बीच में, हाँ मैं थोड़ा, मेरे को ये सब दिखता नहीं है, चैट वैट सारी चीज। ओके सर। अगर कुछ ऐसी बात हो तो आप मुझे बता दें। अभी हम पूछते हैं, क्वेश्चन भूल गया हूँ, क्या था क्वेश्चन? हाँ, ये जो मैंने अभी बताया था, शशि कुमार आइए। शशि कुमार। यस सर। शशि कुमार, ये जो मैंने आपके सामने रखी बात कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन म्यू और सिग्मा पे डिफाइंड है। अगर मैं आपको म्यू सिग्मा बता दूं, देन आपको एक नया x दूं और बोलूं विद व्हाट प्रोबेबिलिटी यू आर सेइंग दैट दिस x बिलोंग्स टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे निकालोगे? यस सर। बोलो। हेलो। हाँ बोलो, आ रही है बात। सर उसको चेक कर लेंगे कि वो उस डिस्ट्रीब्यूशन में लाइक करता है नहीं। कैसे? सर न्यू और सिग्मा तो वो करना क्यों गिवन है। म्यू और सिग्मा गिवन है, बताओ कैसे चेक करेंगे? म्यू और सिग्मा गिवन है, क्या करूं कि पता चले?
सर उसका देख लेंगे, डिस्टेंस लॉस देख लेंगे कितना पास है वो। किस चीज का लॉस बताओ, क्या है वो लॉस? सर डिस्ट्रीब्यूशन का कि वो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन से कितना पास है पॉइंट या फार अवे है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने बताया और एक पॉइंट दिया है, तो पॉइंट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। पॉइंट तो अपने आप में अकेला एक वैल्यू है और मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है म्यू और सिग्मा पे आधारित। बताओ कि कैसे कैसे मैं बताऊंगा कि ये उस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। गलत बता दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सही कर दूंगा, अपनी ही क्लास है। मीन के फॉर्मूले के हिसाब से जैसे मीन के पास है या मीन के दूर है अकॉर्डिंग टू द वेरिएंस, क्यों कितना बहुत सही बात बोली कितना आपने। पास है। चलिए मैं इसको बनाता हूं आपके लिए। ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। इस गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में ये है मीन और सिग्मा क्या है? सिग्मा ऐसा होता है कि कितना ये फैलाव में है। 3 सिग्मा के आसपास ये खत्म हो जाता है। 3 सिग्मा 4 सिग्मा के आसपास ये डाई करने लगता है। तो गॉसियन के म्यू और सिग्मा का ये मीनिंग है। अब मैं कहता हूं एक एक्स देता हूं, एक एक्स। ये एक्स इस डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करता है कि नहीं, ये निकालें कैसे? ये पूछते हैं जियोमी C3 से। जियोमी 3 आप बताइए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ क्या नाम है आपका? सर अक्षता। अक्षिता आप बताइए। हाँ तो सर जो अभी आपने फॉर्मूला बताया ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बिलोंग्स टू द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच हैज म्यू और सिग्मा, तो बस फॉर्मूले में एक्स वील पुट एंड देन वील गेट द बिल्कुल ये प्रोबेबिलिटी वेदर आपने इट बिलोंग्स टू द सही बात कह डिस्ट्रीब्यूशन और दी। नॉट। करेक्ट, थैंक यू। बिल्कुल आपने सही बात बता दी है, थैंक यू। तो देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लिखा तो है यार, ये आप ये मैंने लिख दिया फार्मूला। अब अगर तुम इस डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले में ये z लिख दिया है, z नहीं है ये, शायद वो होता है 1/2 और समथिंग। बहरहाल नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है ये, वो वाला z नहीं है, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज विद दैट। इट इज जस्ट अ नॉर्मलाइजेशन कोएफिशिएंट। मैंने आपसे क्या बोला, इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं एक x डालूंगा, एक x, तो वो x यहाँ जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग म्यू आएगा, उसको माइनस करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, 2 सिग्मा से डिवाइड करके e की पावर चढ़ाओगे और अगर नॉर्मलाइज करोगे तो एक सिंगल वैल्यू पे आ जाओगे। तो आपको इस जगह पे एक कोई पॉइंट मिलेगा, मान लो ये है वो x। जो नया x आया जब उसको रखा तो आपको क्या वैल्यू मिली? तो आपको ये वैल्यू मिली। आपने कहा ये है प्रोबेबिलिटी, आपने कोई दूसरा x उठाया, आपको ये वैल्यू मिली, आपकी ये है प्रोबेबिलिटी। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। जो हाइट है ये बता रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अगर वो एक थ्रेशोल्ड से कम हो, आपने ये थ्रेशोल्ड बना दिया। अगर इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा तो आप बोलोगे वो इसको फॉलो करता है, कम है तो बोलोगे कि नहीं फॉलो करता। ये बेसिक फंक्शन फंडा है बेजियन क्लासिफिकेशन का। जिन लोगों ने मशीन लर्निंग का कोर्स किया था, पैटर्न रिकॉग्निशन दिलीप वाला, उसमें आपने बेजियन क्लासिफिकेशन किया था। बेजियन क्लासिफिकेशन को भी मैं 2 मिनट में बता देता हूं आपको, ताकि चीजें आपको एटलीस्ट थोड़ी क्लियर रहे। बेजियन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत लर्निंग क्या होती है? ये न्यूरल नेटवर्क नहीं है। बेजियन क्लासिफिकेशन ये कहता है कि भाई मेरे पास एक क्लास है, ये इसके सारे पॉइंट हैं, और मेरे पास एक दूसरी क्लास है, ये उसके सारे पॉइंट है। मैंने माना कि ये भी गॉसियन को फॉलो करता है और ये भी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। अब मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हुए ये डिस्ट्रीब्यूशन के म्यू और सिग्मा निकाल लेता हूं, म्यू एक्स और म्यू वाई। सॉरी, मैं इसके ये निकाल लेता हूं डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर, और वो हो गया म्यू1 और सिग्मा1, और इसके निकाल लिए म्यू2 और सिग्मा2। और ये कौन सी क्लास थी? ये कैट की क्लास थी और ये डॉग की क्लास थी। अब मेरे पास एक नया सैंपल आया x। अब ये कैट है कि डॉग है मुझे नहीं पता, तो मैंने ये जो g है, दिस g इज म्यू1 सिग्मा1 एंड दिस g इज म्यू2 एंड सिग्मा2। और फार्मूला क्या है म्यू1 सिग्मा1 का? ये है फार्मूला, सामने रखा हुआ वही तुम्हारे दोनों के लिए, यही फार्मूला है। एस्टिमेट ही ये किया है।
निकालते कैसे, लॉग लाइक्लीहुड मैक्सिमाइजेशन और बहुत सब कुछ किया जाता है अलग अलग तरीकों से। बहरहाल जब आपको ये मिल जाता है तो आपको क्या करना होता है, आप नए वाले को उठाएंगे, इस नए पॉइंट को उठाएंगे, क्या करेंगे, इसको लेंगे, इस पे रखेंगे, आपको एक वैल्यू आएगी V2, इस पे रखेंगे, मान लिया वैल्यू आएगी V1। अब अगर V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा है, उसके आधार पे आप बता देंगे कि ये किसकी क्लास को बिलोंग करता है। यही होता है बेजियन क्लासिफिकेशन। अब जब मैंने आपको ये बात बताई, इतनी कहानी इसीलिए बताई कि भाई अगर मेरे पास एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के म्यू और सिग्मा है, और जो गिवन मेरे म्यू और सिग्मा ये हैं दोनों, इन म्यू और सिग्मा के करस्पॉन्डिंग गिवन देम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि माय एक्स बिलोंग्स टू दिस क्लास, दिस इज दिस। अब आओ तीसरे पॉइंट पे, 2 पॉइंट बताए थे भी, तीसरे पॉइंट पे मान लो कि म्यू की मेरा जो म्यू है दैट इज एक्चुअली सम एक्स हैट, और सिग्मा की वैल्यू मैं 1 कर दूं, क्या बना, ऊपर जाइए और यहां पे इसकी वैल्यू एक्स हैट कर दिया, दिस इज बिकम दिस, और इसको मैंने 1 कर दिया, तो ये कुछ तो ऐसा बन के आ गया। So this probability that given this observation, what is the probability that my x is very similar to this or coming from the same distribution, that's the probability that we are trying to estimate. और वो हो गई किसके प्रोपोर्शनल, इसके प्रोपोर्शनल। ये जो प्रोबेबिलिटी हुई जो इसके प्रोपोर्शनल हुई, बात देखो कहां से स्टार्ट किया था, मैंने सिर्फ आपसे बोला गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, और इस गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में हमको मिला कि प्रोबेबिलिटी जो बन रहा है और जो दिखाया था, हाउ क्लोज दे आर, इट कैन बी एस्टिमेटेड लाइक दिस यूजिंग अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इफ वी आर assuming a Gaussian distribution taking log both side, we become this as log likelihood. And what is this? MSE दिख रहा है सबको, MSE है, directly proportional. Now the point that I wanted to make, see it again, L2 को या MSE को मिनिमाइज करोगे, इसको मिनिमाइज करने का मतलब है log likelihood for a Gaussian को मैक्सिमाइज करना। अगेन मैंने घुमा के एक बात बोल दी, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, और ये हमने पीछे दिखाई भी थी। एक्चुअली यही तो आपसे लॉग लाइक्लीहुड मैक्सिमाइज कराने की कोशिश कर रहा था VAE, और उसने कहा था अगर ये करना चाहते हो तो ये कर लो। वही वाली बात मैंने उल्टा खोल के दिखा दी आपको कि आप अगर ये करते हैं तो लॉग लाइक्लीहुड का मैक्सिमाइजेशन होता है, और नॉट ओनली दैट, अज्यूमिंग कि जो लॉग लाइक्लीहुड है वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है? चलो कोई नहीं, अभी आपके सामने आएगा क्वेश्चन, आपके सामने रखता हूं। ये क्या मान के चला कि व्हाट इट इज एक्चुअली अज्यूमिंग दैट की जो रियल डेटा है इट इज कमिंग फ्रॉम अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप ये मिनिमाइज करते हैं तो इसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि डेटा एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है। और अगर डेटा एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है तो इसका मतलब है कि डेटा बहुत ही सिंपल है और उसमें एक सिंगल पीक है और सारी इमेजेस बड़ी ही सिमिलर टाइप की हैं। लेकिन अगर मेरा डेटा कॉम्प्लेक्स है, ऐसा सब सवाल कई लोगों ने बीच में मुझसे पूछे भी थे VAE में, अगर मेरा डेटा कॉम्प्लेक्स है तो VAE की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मेरा डेटा कॉम्प्लेक्स हो गया और आप क्या कर रहे हो, आप MSE को मिनिमाइज कर रहे हो, लॉग लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज कर रहे हो। लॉग लाइक्लीहुड क्या एज्यूम कर रहा है कि डेटा जो X है वो जिस डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है वो यूनिट मतलब दैट इज एक्चुअली सिंगल मॉडल गॉसियन। बट सपोज आपके सामने कुछ ऐसा डेटा हो, ये जो नीले रंग का डेटा है ना, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि नीले रंग से डेटा है और ये L2 लॉस है। नीले रंग का डेटा क्या कहता है, ये है मेरा डेटा। क्यों भाई? ये पहली क्लास है, मेरे डेटा में 2 क्लासेस है, एक कैट की फोटोग्राफ्स है और एक डॉग की फोटोग्राफ्स है। और आप कैट और डॉग दोनों की फोटोग्राफ्स को दिखाते हैं अपने नेटवर्क को और कहते हैं बनाओ।
तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो भी कुछ बनता है, अगर वो इसके पास में बन जाए तो इससे दूर हो जाता है, और इसके पास में बन जाए तो इससे दूर हो जाता है। तो आप बीच में जो L2 लॉस है, इसको पहले तो इन दो लोगों को आप दो खेमे समझ लें, जैसे बॉलीवुड के अंदर चलता है, एक बड़ा ग्रुप है और एक दूसरा ग्रुप है। इसके बीच में जो साधारण कलाकार है वो बीच में रहने की कोशिश करता है। वो कहता है ना इनके पास जाओ ना इनके, क्यों? क्योंकि अगर इसके पास गए तो इससे लॉस बढ़ जाएगा, और अगर इसके पास गए तो इससे लॉस बढ़ जाएगा। और एक्चुअली L2 लॉस यही करता है। L2 लॉस की प्रॉब्लम क्या है कि वो अगर दो मोड हैं, दो तरह की चीजें बनानी है, तो वो क्या करेगा कि ना वो ब्लरिंग करना स्टार्ट कर देगा। वो ये करना स्टार्ट, क्योंकि अगर उसने ज्यादा ही मोड 1 या कैट की तरह इमेज बनाई तो वो इस मोड से दूर हो रही होंगी, और आपको जो है इसके मुताबिक अच्छा लॉस नहीं मिल रहा होगा। और अगर आपने इसके जैसे बनाई तो ये लॉसेस पैदा करेगा। तो अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूशन जो कि ऐसा है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन से लर्न करने की, या सॉरी यूनिट नहीं, सिंगल मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन से लर्न करने की कोशिश करेंगे, तो वो एवरेजिंग करने की कोशिश करेगा सबके बीच में। कहेगा मुझे नहीं मतलब, मैं यहाँ पर दूंगा तो इससे भी बराबर हूँ, इससे भी बराबर हूँ, इसलिए मेरे मोस्ट ऑफ द सैंपल्स का जो डिस्टेंस है वो कम आएगा। पॉइंट इज दिस दैट L2 जो है, अच्छा इसके पहले एक और बात बोलता हूँ, और वो ये है कि यही चीज आपको मैंने इस तरह फोटोग्राफ्स में भी दिखाई थी। ये फोटोग्राफ भी ऐसी ही बात कर रहा था कि अगर इस तरह की इमेज है जो कि कॉम्प्लेक्स है, जिसमें सिर्फ फेसेस ही नहीं है, आईज है, माउथ है, नोज है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो ऐसी इमेज भी बनाने की कोशिश करता है, ऐसी भी, लेकिन ऐसी बनानी तो उसको मुश्किल पड़ेगी, तो वो ऐसी बनाने लगेगा खुश होकर के। और अगर वो ऐसी बनाने लगा तो ऑल्दो योर लॉस इज सेम और MSE इज सेम, बट इट्स हेवीली ब्लर्ड. So it actually understand that instead of answering the correct thing, if I answer a blur thing, even my loss remains to be the same. ज्यादा नीचे नहीं जाएगा. ये बिल्कुल ऐसा ही है, जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आता होता है तो आप इधर उधर की बातें करने लगते हैं. आप इधर उधर की बात करके कह देते हो कि अरे सर ये तो मैंने कहा अरे लेकिन ये तो आंसर नहीं है. तो आपने कहा लेकिन कोई बात नहीं, हमें डांट भी तो नहीं पड़े, हमने कुछ तो जवाब दे दिया ना. इसी तरीके से ये इतना क्लियर भले ना बना पाए, लेकिन ये लॉसेस जो हैं, ये लॉसेस दोनों के एक बराबर है, MSE एक बराबर है. तो MSE इज नॉट अ गुड पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन. और ऑलवेज रिमेंबर, एक आप इमेज ले लें, उस इमेज को लेकर के पहले ब्लर कर दें, और अब ब्लर्ड इमेज का और ओरिजिनल इमेज के बीच का डिस्टेंस निकालें तो ज्यादा आएगा. सेकंड टाइम क्या करें कि उस ब्लर्ड इमेज को ले और रीब्लर कर दें, और ज्यादा ब्लरिंग कर दें. अब डिस्टेंस निकालें. जो ब्लर्ड और रीब्लर्ड इमेज के बीच का डिस्टेंस है वो और एक्चुअल इमेज और ब्लर्ड के बीच का डिस्टेंस जो है दे आर वेरी फार. ब्लर इमेज को और ब्लर करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इमेज में, until and unless आप एकदम ही उसको खत्म करते चले जाए. This is the thing that MSE is actually doing. MSE is minimizing, log likelihood is maximizing. Log likelihood assumes that there is a single Gaussian distribution, but most of the time your distribution is not a single Gaussian distribution. It's actually a multimodal distribution. एक सिंगल मोड से आप दो मोड का एस्टिमेशन करेंगे तो एवरेजिंग होगी. इसलिए MSE जो है वो एवरेजिंग की तरफ लेकर के जाता है. और एवरेजिंग का मतलब है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग मी द राइट आंसर, यू गिव मी ऑन एन एवरेज क्या आंसर होता है. और ऑन एन एवरेज जो आंसर होता है वो ऑन एन एवरेज इमेज बनेगी, और अगर ऑन एन एवरेज इमेज बनेगी तो वो ब्लर्ड होगी, और अगर ब्लर्ड इमेज होगी तो इट्स नॉट गुड फॉर रिकंस्ट्रक्शन. पहली बात. अब जाते हैं दूसरी तरफ. ये पहली प्रॉब्लम थी रिकंस्ट्रक्शन में, आपने VAE में L2 लॉस का इस्तेमाल करा. तो you cannot depend only over L2 loss. Now let us go and talk about another problem, that is KL divergence problem. KL divergence पे फिर से आते हैं.
केएल डाइवर्जेंस कहता है कि मेरे पास एक पी डिस्ट्रीब्यूशन है और एक क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। पी मेरा टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन है और क्यू मेरा सोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड व्हाट आई वांट इज कि मैं अपने क्यू डिस्ट्रीब्यूशन से, सोर्स मतलब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, तो मैं क्यू डिस्ट्रीब्यूशन से पी डिस्ट्रीब्यूशन को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा हूं। आई वांटेड टू एस्टिमेट पी यूजिंग क्यू। मतलब ये कि अगर मैंने केएल डाइवर्जेंस पी क्यू लिखा, या इसको कहते हैं फॉरवर्ड केएल, और मैंने लिखा केएल डाइवर्जेंस रिवर्स केएल पी क्यू पी, तो पी क्यू होगा पी एक्स लॉग पी बाई क्यू और क्यू पी होगा क्यू लॉग क्यू बाई पी। दोनों बातें आपके सामने लिखी हैं। ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, दोनों अलग अलग होते हैं। हमने ये बात देख ली कि वो सिमेट्रिक नहीं होता है। और दूसरी बात कि हम लोग Q से P को एस्टिमेट करना चाहते हैं। मतलब ये कि हम Q को एस्टिमेट करेंगे और फिर देखेंगे कि Q P से कितना दूर है, और बेसिकली एसिड नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करके ट्रेन करवाया जाता है कि ये जो Q डिस्ट्रीब्यूशन है ये ऐसा बने जो Q से बहुत पास में हो, धीरे 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 करके। तो एक आया पी क्यू, इसको फॉरवर्ड कहा, एक आया क्यू पी, इसको हमने रिवर्स कहा। पी लॉग पी बाई क्यू, क्यू लॉग क्यू बाई पी। और वीएई क्या करता है? वीएई मिनिमाइज करता है केएल बिटवीन क्यू जेड लॉग ऑफ क्यू जेड पी जेड बाई एक्स। तो ये क्या लेके मिनिमाइज कर, और ये क्या होता है? ये एक अननोन टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमें पता नहीं होता ना। व्हाट इज दिस बाय द वे, ये है क्या? अरे यही तो है ना मैपिंग की एक्स से जेड कैसे बनाओ। तो ये एनकोडर है, और ये एनकोडर किस पे पैरामीटराइज्ड है? फाई पे पैरामीटराइज्ड है। ये एनकोडर जो है ये फाई पे पैरामीटराइज्ड है, पहली बात। और दूसरी ये कि ये क्यूजेड है, और क्यूजेड जो है आपका इस फाई से निकल के आता है। आप देखते हैं कि हाउ फार दिस इज फ्रॉम दिस। एक्चुअली ये देख तो आप पाते नहीं है, तो आपने बेसिकली आपने ये निकालने के बदले क्या किया था, सबको याद है, वो मैं फिर से नहीं बताऊंगा। कि ये आप नहीं कर पाते थे तो एल्बो का एक टर्म, ये मतलब log of px was actually equal to this plus the elbow, फिर हम elbow पे चले गए थे, but ultimately this was the thing which is also going to be minimized। ये क्या हो रहा था? कि आप ऊपर देखें कि ये qx है और ये क्या है? ये px है। ये अननोन डिस्ट्रीब्यूशन है जो आप निकालना चाहते हैं, और ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? ये वो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको कि थ्रू आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो VAE is actually using KL divergence, reverse KL divergence, KL divergence in the reverse form. Okay. Now, अगर VAE रिवर्स फॉर्म में यूज होती है तो फॉरवर्ड वाली क्यों नहीं यूज होती? दिस इज द क्वेश्चन। मैंने आपको पहले फॉरवर्ड बताया, फिर मैंने आपको रिवर्स बताया, फिर मैं ये क्वेश्चन ये कह रहा हूँ कि रिवर्स केएल डाइवर्जेंस का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है केएलडी में, VAE में, फॉरवर्ड का क्यों नहीं किया जा रहा? हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों को क्लोजली देखने जा रहे हैं कि इसमें होता क्या है दोनों डाइवर्जेंस में। तो दिस इज एक्चुअली द केएल डाइवर्जेंस बिटवीन सम P एंड सम Q। दिस इज फॉरवर्ड बाय द वे, राइट? दिस इज फॉरवर्ड। यहाँ P है, ये Q है, ये निकालना है, ये अननोन है, इसके थ्रू निकालना है। इसके थ्रू निकालने मतलब हम इसको कैसे निकालते हैं? इसको इस पैरामीटराइजेशन से निकालते हैं, फिर देखते हैं कि ये इससे कितना दूर है। तो एस्टिमेटिंग P वाया Q यूजिंग फाई। फाई मेरा न्यूरल नेटवर्क है, उसके पैरामीटर। नाउ इसकी ये क्या है? ये किसके बराबर है? दैट इज P और Q ना, तो P log P by Q, P log P by Q। ओके, प्रॉब्लम देखें। प्रॉब्लम यह है कि मान लें कि ये 0 हो जाता है। इससे पहले एक छोटी सी बात और बता दूं कि KL डाइवर्जेंस के अंतर्गत लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 x log x इक्वल टू, अब समझते क्या हुआ? KL डाइवर्जेंस के अंतर्गत हमने लिखा
ये वाली बात सभी कोई लिखे और बताए कि क्या होता है। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 x log x, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 x log x, इसको जीरो सेट कर दिया जाता है। ठीक है, इट्स बीइंग सेट एज 0। ये पहली बात है। अभी दूसरी बात पे आओ कि अब अगर मैं इसको 0 कर दूं और ये 0 ना हो, अगर मैं इसको 0 कर दूं और ये 0 नहीं है, तो ये कहां चला जाएगा? गीतांजलि आप बताइए। इनफाइनाइट, ठीक है। गीतांजलि आप हैं? यस सर। हाँ, आपको ये दिख रहा है कि अगर ये चीज 0 हो जाए, यस सर। और ये चीज 0 नहीं हुई है, यस सर। तो ये पूरी चीज कहाँ चली जाएगी? सर इंफिनिटी में। इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी, क्योंकि भाई ये चीज 1/0 की टर्म में गई और log है और dx है, तो ये बेसिकली एक्सप्लोड कर जाएगा, इन्फिनिटी हो गया, डन। नाउ द पॉइंट इज कि एक्चुअली इन्फिनिटी पे क्या चली जाएगी? ये बेसिकली अनडिटरमाइंड, यू कैन नॉट डिफाइन, आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे एक तरीके से। तो आपको एक बहुत बड़ी वैल्यू रख देंगे। भाई मैथमेटिकली जब आप काम करते हैं तो इस सब तरीके के माहौल में आप ये क्या रखना पड़ता है कि अगर ऐसा कभी भी होता है कि qx 0 के बराबर हो जाए, तो इस संख्या को 500 रख देना, 500 के बराबर। कुछ तो बहुत बड़ी वैल्यू डाल दी, 500, 5000, जो भी उस माहौल के हिसाब से या उस सिनेरियो के हिसाब से बड़ी वैल्यू हो। लेकिन आप एस्टिमेट नहीं कर पाए कि कितना डिस्टेंस है। मुद्दा ये नहीं है। Point is this कि this is going to be a scenario in which this guy is going to be 0 and this guy is not 0, and at that point of time your major is not going to say anything। और अगर ऐसा है तो क्या घटनाएं घटित होंगी, वही हम लोग देखने जा रहे हैं। एक एक करके देखते हैं। मान लीजिए कि मेरा P ये है, थोड़ा सा बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन P, इसको एस्टिमेट करना चाहता हूं इसके थ्रू। अगर इसके थ्रू इसको एस्टिमेट करने की कोशिश करूंगा तो मान लो कि ये ऐसा था कि ये P ये है और इसी के अंदर मेरा Q है, ऐसे करके इसी के अंदर इस तरह से Q है। ओके, अब जरा इन जगहों के बारे में सोचो कि क्या हो रहा है। इन जगहों पे Q क्या है? 0 हो गया, और P नहीं है 0, तो वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, इनफाइनाइट भी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। और KL का जो फॉरवर्ड वर्जन है, जिसको कि हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, KL का जो फॉरवर्ड वर्जन है, वो इस बात को कतई मानना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी वैल्यू दे रहे हो ना। तो वो क्या कहेगा, कह रहे ये गलत है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। क्या करेगा, खींचेगा इसको, अरे आगे आओ, तो ये इतना आ गया, तो कहता अरे अभी भी ये इतनी जगह बची हुई है, और आगे आओ। वो कहेगा और आगे आओ और आगे आओ। इसको कहते हैं स्ट्रेचिंग। डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेच करेगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, सो दैट कि ये चीज ऐसे खींच जाए। और इस स्ट्रेचिंग के कारण इसको हम लोग ये भी नाम देते हैं मीन सीकिंग। ये मीन की तरफ लेके जाने लगता है। कहता है अरे कुछ भी करना हो करो, बहरहाल तुम्हें ऐसे रहना है, ऐसे नहीं कि तुम एक जगह पे चलेगा, किसी एक मोड को पकड़ लिया, ऐसा अलाउ नहीं करूंगा, या इधर पकड़ लिया, नो, अगर ये पकड़ोगे तो भी इधर ले जाऊंगा, ये पकड़ोगे तो इधर ले जाऊंगा। बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मीन की तरफ खींचने का काम करता है KL फॉरवर्ड। ठीक है, दैट इज एक्चुअली मीन सीकिंग। दूसरी बात पे आते हैं, रिवर्स केयर। रिवर्स केयर QP, QP, Q log Q/P। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि अगर ये चीज 0 हो जाए और ये चीज ना 0 हुई हो, ये इसको नहीं अलाउ करेगा। वो क्या होता है, तो मान लीजिए कि मेरा P ऐसा है
और मेरा क्यू कुछ तो ऐसे करके बाहर निकल गया, लॉन्ग टेल है, टेल बहुत लंबी है। इस टेल की जगह पे क्या हो रहा है, इस टेल की जगह पे मेरा क्यू तो 0 नहीं है, लेकिन पी 0 हो गया। तो वो क्या करेगा, कहेगा अंदर चलो, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हॉस्टल से निकलना अलाउड नहीं है ना, तो कहता अंदर रहना है तो रहो। तो ये अंदर लाएगा, ये भी अंदर लाएगा, दोनों तरफ से इसको अंदर लेकर के आएगा। दैट इज श्रिंकिंग द डिस्ट्रीब्यूशन। किस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग ये बात कर रहे हैं, क्यू। ये पी डिस्ट्रीब्यूशन को कोई श्रिंक नहीं कर सकता ना, क्योंकि पी तो एस्टिमेट करना है, वो तो रियल डिस्ट्रीब्यूशन है जो निकालना चाहता हूँ, जो मुझे पता नहीं है, निकाल रहा हूँ क्यू से। क्यू पैरामीटराइज्ड है फाई पे, फाई डंडे चलाता है, क्यू फाई किस पे डंडे चलाता है, फाई क्यू के डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है। तो वो धीरे धीरे करके ये फाई बदलता है, फाई बदलने का मतलब है कि क्यू बदल रहा है। तो अगर आपने फॉरवर्ड केएल लगाया तो वो उसको मीन की सीकिंग करेगा, और अगर रिवर्स केएल लगाया तो वो मोड की सीकिंग करेगा। क्यों, क्योंकि ये अंदर अंदर लाने की कोशिश करता है, तो जब ये अंदर घुसेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है। सो इसको कहते हैं, पहले वाले केस को जब फॉरवर्ड होता है तो ओवर एस्टिमेशन भी कहते हैं, जहां पे वो ऐसा ऐसा और इस तरह की चीजें जो मैंने अभी आपको दिखाई भी थी कि सिंगल गॉसियन से ऐसे करने की कोशिश करता है। तो केएल डाइवर्जेंस का जो फॉरवर्ड वर्जन है वो भी कुछ कुछ सिमिलर तरीके से किसके जाता है, L2 लॉस के मिनिमाइजेशन की तरह, क्योंकि वो इन दोनों मोड को कहता है एक के मीन से ही कुछ करो, तो ब्लरिंग की तरफ लेके जाता है। बदले उसके रिवर्स केएल क्या करता है, रिवर्स कहता है कि अंदर लाता है, और वो बेसिकली हो सकता है आपको इधर की तरफ ले जाए या इधर की तरफ ले जाए, या किसी एक मोड में आपको कन्फाइन करने की कोशिश करे। इट में ट्राई टू टेक यू टू अ पर्टिकुलर मोड। ये मोड 1 है, ये मोड 2। अच्छा, मोड में जाने से क्या होगा, अगर मान लीजिए उसमें कैट की इमेजेस है और डॉग की इमेजेस है और दो तरह की इमेजेस है, तो वो एक तरह की इमेजेस बनाना सीखेगा और दूसरी तरह के मोड्स या इमेजेस को बनाना मिस कर जाएगा। ये दोनों बातों के बाद एक छोटी सी बात और है। पहली बात तो यहां से ये निकल करके आई कि इसीलिए हम लोग मोड सीकिंग बनाने की कोशिश करते हैं, और एटलीस्ट हम उससे ये कहते हैं कि अपने वीएई में फॉरवर्ड के बदले बैकवर्ड का इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि मोड सीकिंग डिस्ट्रीब्यूशन आए, ताकि ये मानते हुए कि मेरा नेटवर्क बहुत ज्यादा तो कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, एक्स है, और अगर बहुत ज्यादा एक्स मेरा कॉम्प्लेक्स नहीं है तो L2 भी ठीक से चल जाता है। और साथ ही साथ रिवर्स केएल क्या करता है कि अगर एक ही मोड है या बहुत सारे भी मोड हो, उनका एवरेज पकड़ के तो फिर भी ठीक ठाक इमेजेस वीएई बना ले। बट केएलडी का, जैसे मैंने आपको वीएई में बताया, दो लॉसेज है, जिसमें से पहला लॉस था L2, और उसका मैंने आपको लॉस का बहुत बड़ा नुकसान दिखा दिया कि ब्लरिंग को पैदा करना ये उसका सबसे बड़ा नुकसान है। केएलडी का अपना सबसे बड़ा नुकसान जो कि रिवर्स केएलडी है, चाहे रिवर्स हो चाहे फॉरवर्ड हो, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो इनहेरेंट प्रॉब्लम क्या है वही हम लोग देखने जा रहे हैं, और यहां से लगता है धीरे से हम लोग जा सकें गैन की तरफ। तो केएलडी सफर करता है इनहेरेंट प्रॉब्लम, क्या फेस करता है केएलडी, लेट अस सी। मेरे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन है, पी और क्यू, आपके सामने बना देता हूं। पी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन इधर एक्स दिखा रहा हूं, और 0 पे ही पूरा मास है, मतलब x इक्वल टू 0 इज अ सर्टेन इवेंट, px इक्वल टू 1, और बाकी सब कुछ 0 है। x इक्वल टू 0.5 इज अ सर्टेन इवेंट वेयर qx इक्वल टू 1, और बाकी सब कुछ 0 है। ये दो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख गए, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है। ये दोनों डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट पीडीएफ है, और नॉट ओनली दैट, ये पॉइंट पे ही पूरे के पूरी कंसंट्रेटेड है, एक ही एक पॉइंट पे। ये जो इवेंट है, ये जिस इवेंट का है वहां पे 0 आना तय है, और यहाँ पर 0.5 आना तय है, फिक्स है। अच्छी बात है, दोनों बातें आ गई समझ में। अब जानते हैं कि केएल डाइवर्जेंस पी क्यू के बीच में क्या होगा और केएल डाइवर्जेंस क्यू पी के बीच में क्या होगा। केएल डाइवर्जेंस क्या था, क्यू पी लॉग पी बाई क्यू फॉर ऑल एक्स, दिस लॉग दिस। क्या एक्स चलेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में
जब आपने लिखा कि भाई p, तो बेसिकली x की वैल्यू 0 आएगी, तो log of x इक्वल टू 0, सॉरी px इक्वल टू 0 log px qx, इंफिनिटी आ जाएगा। ये क्यों? ये इसलिए इंफिनिटी आ जाएगा कि ऊपर 1 रहेगा और नीचे 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं ना 1 पे इट इज 0। q of x इक्वल टू, सॉरी q of x इक्वल टू 0 इज एक्चुअली इक्वल टू 0। ये 0 है, ये इंफिनिटी है। और अगर आप इसका उल्टा रिवर्स निकाल देंगे तो qp, तो वो क्या बनेगा? q x इक्वल टू 0.5 log x इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय px इक्वल टू 0.5, और px इक्वल टू 0.5 तो यहाँ कुछ है नहीं, 0 है, तो ये भी इंफिनिटी हो जाएगा। इन दोनों बातों को देख करके आपको क्या समझ में आया? इन दोनों बातों से आपको क्या समझ में आया? ये बात हम पूछते हैं अनन्या से। अनन्या, हाँ बोलिए जी। इन दोनों पॉइंट में आपको क्या समझ में आया, इसमें और इसमें, और ये KLD इंफिनिटी? सर फर्स्ट वाले में तो इन दोनों के आपको ये समझ में आ गया कि ये निकल के आई ना 2 इंफिनिटी वैल्यू? यस सर। मेरे को ये जानना है कि ये दोनों इंफिनिटी वैल्यू निकाल लेने से आपको क्या पता, क्या चला, प्रॉब्लम क्या हो रही है KL डाइवर्जेंस के अंतर्गत? ये फॉरवर्ड है? आप सर जो दो डिस्ट्रीब्यूशन इसी बीच में हम लोग काइंड ऑफ फाइंड करना चाह रहे हैं कि उनके बीच का जो डाइवर्जेंस है वो कम हो जाए, वो दोनों बिल्कुल ही टोटली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, मतलब अलग अलग डायमेंशन में उनका हो रहा है, तो फिर उनको बिल्कुल सही बात बोली। और अगर ऐसा होता है तो KLD क्या जवाब देता है? सर जैसे आपने पहले बताया था कि मतलब वो स्ट्रेचिंग करता है कि जैसे जहाँ पे वो बिल्कुल भी इन्फिनिटी ऐसा कुछ शो कर रहा है तो वो उस साइड उसको ले जाने की कोशिश करता है, बट हम लोग जो रियलिटी में डिस्ट्रीब्यूशन चाह रहे थे उसकी जगह स्ट्रेचिंग हो जाती है। हाँ, लेकिन क्या यहाँ पे स्ट्रेचिंग कुछ भी कर पाएगा ये इस वाले केस में? क्योंकि यहाँ ये इनफाइनाइट बोलता है। अब जो इनफाइनाइट, अब होता क्या है ना कि ये दोनों बहुत दूर है एक दूसरे से। अगर ये दोनों बहुत ज्यादा दूर है तो आप इसको, आप मान लीजिए इस जगह पे है पैरामीट्रिक स्पेस पे, तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे वो हमेशा इन्फिनिटी बोलता रहेगा, हमेशा इन्फिनिटी बोलता रहेगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा दूर हैं और KL डाइवर्जेंस एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहा है इनका डिस्टेंस। और अगर आपका डिस्टेंस आपको सही डायरेक्शन नहीं दिखा सकता, अगर आपका लॉस फंक्शन, तो आप लॉस्ट हो गए ना। आपका लॉस फंक्शन जो है वो, हाँ करेक्ट। तो बेसिकली तो आपने बोला चलो रिवर्स लगा लेंगे, तो रिवर्स के साथ भी वही है। एक्चुअल में फंडा ये हो रहा है, अब इधर आ जाते हैं। एक्चुअल में फंडा ये है कि KL डाइवर्जेंस फेल्स टू मेजर द डिस्टेंस इफ देयर इज नो ओवरलैप। अरे ये डिस्ट्रीब्यूशन आपस में ओवरलैप नहीं करे, जैसे एक डिस्ट्रीब्यूशन ये है और इसको आप निकालना चाहते हैं, लेकिन जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हो वो ऐसा हो, तो इसके थ्रू निकाल ले जाओगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में ओवरलैप है। आपको पता चलेगा अरे इसको और अंदर लाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये ओवरलैप हो जाए। लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ है और एक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को इसके पास लाने के लिए आप थोड़ा सा इधर आएंगे, आपको अभी भी इंफिनिटी, और इधर आए अभी भी इंफिनिटी, और इधर अभी भी इंफिनिटी, बल्कि इधर गए तो भी इंफिनिटी, इधर गए तो भी इंफिनिटी, इधर गए तो भी इंफिनिटी। अब लगातार इंफिनिटी मिलेगा, तुम्हें क्या पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में जाए? आपको पता ही नहीं चल रहा कि किस डायरेक्शन में जाए। तो KL डाइवर्जेंस में अगर ओवरलैप नहीं है तो इसका मतलब है कि आप निकाल ही नहीं पाओगे। इसका मतलब तो ये हो गया कि P और Q में जो मुझे निकालना है, इसके Q से जब मैं इसको निकालना चाहता हूं तो Q में ऑलरेडी सर्टेन अमाउंट ऑफ ओवरलैप इसके साथ हो। अब ये कौन मैनेज करके देगा कि जिससे एस्टिमेट करना चाह रहा हूं जिस चीज को, उनके बीच में ओवरलैप हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये तो 100% दिस इज गोइंग टू हैपन कि the distribution that I wanted to learn via this, there are going to be no overlap between them. There is going to be no overlap between them, especially during the starting time.
during the starting of my optimization, मेरी स्टार्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के स्टार्ट होने के दौरान इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ कोर्स निकाल ही नहीं पाओगे। निकाल नहीं पाओगे का मतलब ये है कि दोनों तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, कोई ओवरलैप नहीं है, तो आप निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये वाला जो है ये स्लाइड्स मैं आज ही अपलोड करूंगा अभी, बल्कि आपको ईमेल पे आएगी या व्हाट्सएप पे, दोनों जगहों पे, व्हाट्सएप पे जाएगी अभी तो ये पहले। और इसमें आपको जो करना है वो ये है कि मेरे पास पी डिस्ट्रीब्यूशन ये है और मेरे पास Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6, ये 6 डिस्ट्रीब्यूशन है। इन 6 डिस्ट्रीब्यूशन के P के साथ फॉरवर्ड निकालें तो 6 फॉरवर्ड निकलेंगे और 6 बैकवर्ड निकलेंगे। ये 12 वैल्यू निकालेंगे, तभी कोई ये 12 वैल्यू निकालेंगे। अगले लेक्चर में ये पूछी जाएंगी, ये जो 12 वैल्यू है इन्हें कंप्यूट किया जाए। कुल मिला के आपको क्या समझ में आया? कुल मिला के आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस हैवीली डिफरेंट है तो KLD बहुत प्रॉब्लम पैदा करता है, और जो VAE में होती भी है। इसीलिए VAE वगैरह के अंदर हमें इनिशियलाइजेशन कैसे किए जाए सो दैट कि जो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशंस इतने भी फार ना हो जाए कि नेटवर्क प्रॉपर्ली ट्रेन ही ना हो पाए। वहां पर ये लोग लेकर के आए, इसको कहते हैं JS डाइवर्जेंस। ये एक प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम का हमने क्या सोल्यूशन दिखाया? इन्होंने सोल्यूशन दिखाया व्हाट देयर इज अनदर डाइवर्जेंस व्हिच इज डिफरेंट देन KL डाइवर्जेंस व्हिच इज JS डाइवर्जेंस। JS डाइवर्जेंस बिटवीन P एंड Q क्या है? दैट इज सिंपल 1/2 हाफ है। एक मैंने M डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ा, M डिस्ट्रीब्यूशन जो P डिस्ट्रीब्यूशन और जो Q डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बीच के डिस्ट्रीब्यूशन को M डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया। कैसे? M इज इक्वल टू P प्लस Q/2। और पहले मैंने P और M के बीच का डिस्टेंस निकाला, फिर Q और M के बीच का डिस्टेंस निकाला और इन दोनों को जोड़ करके 1/2 कर दिया। इसको कहा GS डाइवर्जेंस। सर जो इसमें M डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका ओवरलैप Q और Q दोनों से होगा ना? होना चाहिए, मतलब क्योंकि मिड है ना, मीन पे है, तो ओवरलैप तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दोनों के बीच में है। और M डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली P प्लस Q, जब वो इन्हीं पे डिफाइंड है तो कुछ ना कुछ तो ओवरलैप पे ले आएगा ना। इसको डिफाइन ही ऐसे किया है। क्योंकि आपने कहा था कि KL डाइवर्जेंस का मतलब लॉस ये है कि ओवरलैप नहीं होता है तो वो प्रॉब्लम देते हैं। करेक्ट, तभी तो उन्होंने इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दोनों लोगों को डाल दिया, तो दोनों के साथ उसका कुछ ना कुछ तो ओवरलैप बैठेगा जाके। ठीक है, अब देखते हैं कि इससे फायदा क्या मिला। तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने फिर लिख दिया, ये P है और ये Q है। अभी जिन्होंने क्वेश्चन, हाँ बोलो सर। एक बेसिक डाउट सर, ये P प्लस Q/2 किया मतलब उसके पैरामीटर्स को एवरेज किया ना? मतलब P का मीन और Q का मीन को एवरेज किया या ऐसा कुछ? नहीं, अभी हम लोग न्यूरल नेटवर्क के बाहर हैं और बेसिक थ्योरी में बात कर रहे हैं। मेरे पास एक P डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरे पास एक Q डिस्ट्रीब्यूशन है। मुझे P डिस्ट्रीब्यूशन लर्न करना है Q के थ्रू, लेकिन जब ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन बहुत दूर होते हैं तो KL डाइवर्जेंस कुछ तो रिजल्ट ही नहीं दे पाता। तो मैंने एक M डिस्ट्रीब्यूशन और पैदा किया जो P के भी पास है और Q के भी, मतलब दोनों से इक्वी डिस्टेंट है। सर बट ये डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज लेना मतलब क्या सर? डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज लेने का मतलब अभी आपके सामने नीचे आ जाएगा। ओके। और ये तो बेसिकली आपके पास 2 वेक्टर होंगे, उन दोनों वेक्टर को जोड़ दो तो बाय 2 कर दो, तो ये अभी आ जाएगा आपके सामने नीचे ही लिख के। ठीक है, ओके सर। Okay. मेरे पास ये P डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरे पास ये Q, सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, 0 पे 1 है, ये 0.5 पे 1 है और दोनों लोगों में कोई भी ओवरलैप नहीं है। अब अगर मैं P और M निकालता हूं तो वो ये लिख के आता P log P/M, तो वो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 ये हो जाता है, ये देख लो। तो वो इंडिविजुअल वैल्यूज को जोड़ो, बाय 2 कर दो, एंड दिस कम्स आउट टू बी log of 2 एंड दिस comes out to be log of 2। तो चाहे फॉरवर्ड निकाल लो चाहे बैकवर्ड निकाल लो, इन दोनों ही केसेस में अगर ओवरलैप नहीं है तो log 2 आता है।
So it's going to give you a value instead of giving something which you cannot estimate. Now you can estimate that, and that is why JS divergence is better than KL divergence. And if I say JSD PQ, तो JSD PQ क्या लिख के आएगा? एक्चुअल में ये log 2 है, ये log 2 है, 1/2 का log 2 plus log 2 हो जाएगा कितना? 2 log 2. मैंने क्या लिखा है? 2 log 2. सभी को ये बात समझ में आ गई? हम लोग यहीं पे खत्म करने वाले हैं. यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको पूछना है JSD के बारे में, JSD आपके सामने मैंने क्या रख दिया, ये एक संख्या. बात कुल मिला के अब ये है कि KL डाइवर्जेंस बेकार है, हमने बात करी, हमने L2 लॉस बेकार है बात की, और हमने कहा इन दोनों के बदले क्या इस्तेमाल करो, JSD. और JSD इस्तेमाल कौन करता है? गैन. इसलिए गैन आया BAE के बाद में. अब आगे से हम लोग गैन में जब पढ़ेंगे तो गैन के अंदर जो BAE के लॉसेस है वो नहीं इस्तेमाल होते हैं, उसमें JSD लॉस को मिनिमाइज किया जाता है. ठीक है, वी आर डन फॉर टुडेज क्लास. किसी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो. छत्तीस बच्चे हैं सर. एक छोटा सा डाउट था. बोलो सर. ये JSD सर रिकंस्ट्रक्शन लॉस को कैसे टेक केयर करेगा? इसको करने के लिए हमें कम से कम 7-8 पन्ने का प्रूफ करना पड़ेगा, और वो करेंगे आगे. अच्छा अच्छा, ठीक है. हाँ, आगे करेंगे. और पूछिए. कुल मिला के असली बात यह है कि अगर आपने रिकंस्ट्रक्शन लॉस तो आपको चाहिए, लेकिन अगर रिकंस्ट्रक्शन लॉस को रिकंस्ट्रक्शन लॉस की तरह से लगाया, मतलब बेसिकली जो रिकंस्ट्रक्शन लॉस चाहिए बट L2 नहीं चाहिए, तो L2 को ना लेके रिकंस्ट्रक्शन लॉस लिया कैसे जाए, तो उसके लिए नई नई चीजें पैदा हुई और तभी जाके गैन आया. और बिल्कुल गैन जो है वो BAE का एकदम साथी है, और BAE को के थ्रू ही मैं गैन को ओपन भी करूंगा. इनफैक्ट मैंने ये तो दिखाई दिया कि BAE के लॉसेस जो है दे आर नॉट सुटेबल फॉर रिकंस्ट्रक्शन, और रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो लॉसेस हैं वो गैन ने JSD के लगाए. और कोई सवाल पूछे? सर. हाँ बोलिए. सर जो इसमें हमने M निकाला है वो ओवरलैप करने के लिए निकाला था सर, तो फिर इस जो भी प्रॉब्लम आ रही थी पहले, जैसे उसमें मीन सीकिंग, स्ट्रेचिंग और श्रिंकिंग की, तो वो इसमें प्रॉब्लम ओवरकम हो जाएंगी इससे कि कंटिन्यू रहेंगी इसमें JS डाइवर्जेंस? उस तरह की, बहुत ही सही सवाल पूछा. उस तरह की चीजें रहेंगी इसमें, और मोड कोलैप्स इसमें भी होगा. अच्छा, मैंने एक आपको बात बोली थी कि जब मोड सीकिंग होगा तो आप किसी एक मोड में जाके फंस जाएंगे. तो अगर आपके डेटा सेट में 3 तरह के मोड हैं, मतलब एक में कैट की इमेजेस का मोड है, एक डॉग की इमेजेस का मोड है, और एक मैन की इमेजेस का मोड है, तो आपका नेटवर्क किसी एक चीज को बनाना सीख जाएगा. हाँ, बनाना सीख जाएगा. तो वैसा गैन में भी होता है मोड, तो उसको कहते हैं मोड कोलैप्स. तो ये गैन की प्रॉब्लम है जो आगे करके आएगी. बहरहाल पहले बेसिक प्रॉब्लम को निपटा लेता तब जा करके, क्योंकि कन्वर्जेंस का बहुत इशू था, और इनफैक्ट कन्वर्जेंस ऑफ BAE में भी इशू है, और कन्वर्जेंस ऑफ गैन में भी इशू है. इनकी कन्वर्जेंसी बहुत ही ज्यादा पुअर है, जल्दी कन्वर्ज नहीं होते और तुरंत ही खराब हो जाते हैं. मतलब अभी आपने देखा कि गैन अभी ट्रेन हुआ और ठीक ठाक चल रहा था, और आधे घंटे और ट्रेन किया तो एकदम बेकार हो गया. सो इन सब चीजों को स्टेबलाइज करने के लिए थ्योरेटिकली बहुत सारा काम चल रहा है और आगे भी चल रहा है. तो मैंने आपको जो पहला JSD बताया, इस JSD को यूज करके जो गैन बना उसका नाम बना DC गैन. इसका नाम दिया गया DC गैन, दैट वाज द कन्वोल्यूशनल गैन. और उसके बाद आने लगे बहुत सारे गैन जिन्होंने अलग अलग लॉस फंक्शंस, कोई वासस्टीन गैन लेके आया तो वो वासस्टीन फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा था, कोई BE गैन लाया तो वो कोई और लॉस फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा था. तो सब लोगों ने अलग अलग लॉस फंक्शंस को चेंज किया
सो दैट कि मोड कोलैप्स और ये वाली सारी प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, ओके ओके। हाँ, और किसी को पूछना है? सर हाँ सर आपने बोला था बोलो। फॉरवर्ड जो केएल है उसमें क्यू स्ट्रेच होता है। हाँ हाँ तो वो सर वो तो क्यू पे डिपेंड करता है ना, मतलब क्यू अगर पहले से अंदर है तो वो स्ट्रेच होगा, अगर क्यू बाहर है तो वो वापस से मोड थोड़ी की सी तरफ आपकी आवाज कट गई थी, एक बार फिर से बोले। सर वो क्यू पे डिपेंड एक बार करेगा फिर से ना, बोलेंगे, थोड़ी आवाज कट गई थी। हाँ सर। हाँ, सर क्यू पे डिपेंड आपने करेगा, करेक्ट। फॉरवर्ड केएल में बोला था कि वो स्ट्रेच होता है मतलब क्यू, हाँ बट वो तो क्यू के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा ना कि वो स्ट्रेच होगा या फिर कन्वर्ज होगा, मतलब श्रिंक होगा। मतलब अगर हाँ क्यू करेक्ट पहले है। से बाहर है तो हाँ फॉरवर्ड केएल में भी वो श्रिंक ही होगा ना, अगर क्यू पहले से ही बाहर है तो मतलब देखो डिस्ट्रीब्यूशन पे देखो, ये डिपेंड बात करता है। बिल्कुल सही है। हमने आपको ये बताया कि प्रॉब्लम कहाँ पे होंगी। कई बार तो क्या होगा कि फॉरवर्ड केयर लगाओगे और नेटवर्क ट्रेन भी हो जाएगा तुम्हारा, है ना। हाँ। तो हमने आपको ये बताया कि किन केसेस में नुकसान होगा। बाकी जैसे नहीं होता है, वर्स्ट केस के बारे में हमने बात किया। बेस्ट केस में तो यार छोटा मोटा नेटवर्क बनाया, ट्रेन किया, चल गया, डेटा में ही बहुत वेरिएशन नहीं था, तो चीजें चल भी जाती है। अच्छा बट ठीक द है सर। ओनली पॉइंट इज दैट इट्स गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन क्यू, और अगर कोई भी चीज क्यू पर डिपेंड होती है तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम होगी ना आपको कि आपका इनिशियल क्यू क्या है। अगर आपका इनिशियल क्यू बहुत दूर चला गया या बहुत पास चला गया तो आपका ट्रेन हो जाएगा, वरना नहीं ट्रेन होगा। यही मैंने बताया कि अनस्टेबिलिटी इन ट्रेनिंग। ओके ओके सर। हाँ, और कोई पूछना चाहता है कुछ? चलिए, इफ देयर आर नो क्वेश्चंस देन ठीक है। तो मैंने आज आपको क्या काम दिया है? मैंने आपको आज काम दिया है 12 डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब 12 केएलडी आपको निकालने हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड 6 और 6। ठीक है, तो इसका या तो मैं इमेज या तो मैं सर्टेन थिंग आपको अभी ईमेल कर दूंगा, जिससे कि आप एसएमएस या व्हाट्सएप, जिससे कि आप उसे निकाल सकें। ठीक है सर। ओके, हाँ बोलिए। सर इसमें फॉरवर्ड केएल में सर, जैसे सपोज अगर क्यूएक्स नॉन जीरो है और पीएक्स जीरो हो जाए, उस केस में ये हाँ जीरो आ जाएगा, तो हाँ फिर हम उसको जो केएल डाइवर्जेंस जीरो आ जाएगा, तो उस केस में हम क्या कहेंगे? ये मतलब ये तो फिर रॉन्ग रिजल्ट देगा ना? नहीं, हाँ तो इसमें होगा ये कि अगर वो चीज मेन इसका जो प्रॉब्लम है वो, एक मिनट, मेन जो इसका इशू है वो इसी जगह पे आता है कि यदि आपने बोला जैसे कि ये फॉरवर्ड, और इस फॉरवर्ड के अंदर जा करके अगर आप बोलते हैं कि ऊपर वाली चीज जो है फॉरवर्ड में, अगर पी की वैल्यू 0 हो जाए, है ना, यस यस सर, और क्यू की वैल्यू क्या हो, नॉन जीरो। हाँ, तो क्यू की वैल्यू अगर नॉन जीरो हो तो दैट इज p that's going to be 0, तो log 0 is not defined. नहीं पर सर x log x, यस सर, बट यस सर, x log x is going towards 0, यस सर, so that will say that things are going to be 0. so actually ये उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर सकता है, बट मेजरली प्रॉब्लम इसको इसी जगह पे जाके फंसती है KLD को, कि जब दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत दूर हैं तो ये मोड मीन सीकिंग की तरफ जाता है और एवरेजिंग ही करने की कोशिश करता है। ठीक है, ठीक है। सो इन नेक्स्ट